Hello everyone, this is Ravi Verma from KCMT कॉलेज। आज मैं आपके सामने अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ विच इज़ टर्म्ड एज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में हर संस्था के लिए ज़रूरी है कि उसमें कार्यरत सभी मैनेजर अपना बेहतर से बेहतर परिणाम दे सकें। उन मैनेजर के कार्यों की गणना, तुलना और उनकी एफिशिएंसी को जानने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल साबित होता है। आज के इस प्रेजेंटेशन में हम ये जानेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है, क्यों आवश्यक है, कैसे लागू किया जाए, इससे होने वाले लाभ और इसके क्रियान्वयन में आने वाली दिक्कतों के बारे में। सो स्टार्टिंग माय प्रेजेंटेशन विद द फर्स्ट स्लाइड, दैट इज़ व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। Responsibility accounting is a management control system based on the principles of delegating and locating responsibility. It is a system under which managers are given decision-making authority and responsibility for each activity occurring within a specific area of the company. It is a reporting system that compiles revenue, cost and profit information at the level of those individual managers most directly responsible for them. अतः यदि इसका सारांश निकाला जाए तो ये निकल के आता है कि इट इज़ अ टूल, इट इज़ अ सिस्टम, इट इज़ अ रिपोर्टिंग सिस्टम विच हेल्प्स द मैनेजमेंट टू गेट अवेयर विद the efficiencies and operational benefits of each and every individual manager within an organization and to make them accountable for their respective duties assigned to them. Now, why responsibility accounting? It is to only for the following benefits out of it: easy identification of the individual manager responsibilities, motivational benefits to be given to the most accurate performers, data availability regarding the performance appraisal system, ready hand information that is relevant and up to the minute information for the future course of decisions, helps in planning and decision making, and ultimately it helps in delegating and controlling the activities within an organization. Now, once we talk about the features of responsibility accounting, these are inputs and outputs in the terms of cost and revenue, planned and actual information as if in terms of uses of budgeting, identification of responsibility centers so as to delegate the work, relationship between organizational structure and responsibility accounting system so as to have timely reports, assigning cost to individuals and limiting their efforts to controllable cost so as to have the maximum returns. While achieving all these, we may have the performance reporting, participative management, management by exception, and ultimately we can achieve the target, that is of human aspect of responsibility accounting. Each and every individual manager is responsible for their outputs, so he can perform in their limited efforts and sources to give us the maximum and optimal output. Now, if we have to implement a responsibility accounting in any organization, so the steps involved in that. First of all, the organization is divided into various responsibility centers. The targets for each responsibility centers are then decided by. The actual performance of each responsibility center is recorded and communicated to the executives concerned. So as if the actual performance of the department is less than the standard set, then the variances are conveyed to the top management. Timely action is taken to take necessary corrective measures so as the work in future will not suffer. And the directors' indications and directions are given to the concerning manager to overcome those problems. Now, what for we are implementing this? What are the objectives behind that? किस उद्देश्य के लिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं? इन उद्देश्यों को यदि प्राथमिकता के आधार पर बताया जाए तो ये तीन हैं प्रायः। पहला, टू डिटरमाइन द कंट्रीब्यूशन दैट अ डिवीजन मेक्स टू द टोटल ऑर्गेनाइजेशन, to provide a basis for evaluating the quality of the divisional manager performance, to motivate the divisional manager to operate his decision in a manner consistent with the basic goals of the organizations as a whole. यानी यदि हम उद्देश्यों का सारांश निकालें तो सारांश यही है कि व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, व्यक्तिगत
उपलब्धियों को प्रदान करते हुए संस्थागत उद्देश्यों की प्राप्ति करना, यही है हमारा मुख्य ध्येय रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का। नेक्स्ट कम्स हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। सो फॉर इम्प्लीमेंटिंग इट वी नीड टू डिवाइड द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। नियंत्रण के आधार पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बनाए गए वो प्रायः 4 बनाए गए: कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर। अब प्रायः किसी भी संस्था में यही 4 चीज़ें होती हैं: लागत, आय, विनियोग और लाभ। अब हम सबसे पहले समझना चाहेंगे कॉस्ट सेंटर के बारे में। कॉस्ट सेंटर को ही हम कहते हैं एक्सपेंस सेंटर। एक प्री डिटरमाइंड आउटपुट के लिए लगाए गए रिसोर्सेज का टोटल कॉस्ट डिटरमाइन करना, जिससे कि हम ये निर्धारित कर पाएँ कि हमारा क्या स्टैंडर्ड था और हमने क्या एक्चुअली अचीव किया। और यदि कहीं पर भी कोई डिफरेंस आ रहा हो, तो यदि लागत ज़्यादा आ रही हो तो उसको नियंत्रित किया जाए, और यदि लागत कम आ रही हो तो अगले बजट को बनाते समय उसको उसमें समावेश किया जाए। ये उद्देश्य है हमारा कॉस्ट सेंटर का। अगला आया प्रॉफिट सेंटर, जहाँ पर कि हम कॉस्ट और रेवेन्यू को कंपेयर करते हैं और ये मेज़र करने की कोशिश करते हैं कि हर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का क्या इफ़िशियंसी रहा, क्या इफ़ेक्टिवनेस रहा। यहाँ पर मैं एक चीज़ें बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हम सिर्फ सेटिस्फैक्ट्री प्रॉफिट की बात नहीं करते, बशर्ते हम ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट्स की बात करते हैं, जिसमें हम जानना चाहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल प्रॉफिट में डिवीज़न वाइज सपोर्ट या डिवीज़न वाइज आउटपुट क्या है। नेक्स्ट कम्स द इन्वेस्टमेंट सेंटर। किसी भी प्रोडक्शन में होने वाला लागत, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, टू ऑब्टेन एनी एसेट। एसेट्स को एक्वायर करना और उसके उपयोग से किया जाने वाला उत्पादन और उसके पश्चात उससे मिलने वाला लाभ, इसकी गणना जिस सेंटर के माध्यम से की जाती है वो है इन्वेस्टमेंट सेंटर। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि किसी भी नए प्रोजेक्ट या किसी भी प्रोडक्शन में हमने जो एसेट्स के पीछे अपना कंट्रीब्यूट किया है, उन एसेट्स से मिलने वाला रिटर्न उसके कॉस्ट को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं, और भविष्य में यदि हम कोई निर्णय लेते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही उस निर्णय को लिया जाए। अगला आया रेवेन्यू सेंटर। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं मौद्रिक रिसीट्स की, फाइनेंशियल रिसीट्स की, मॉनेटरी रिसीट्स। वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट व्हाट द कॉस्ट इज, व्हाट द प्रॉफिट इज, व्हाट द इन्वेस्टमेंट इज। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट हाउ मच मनी वी आर रिसीविंग इन रिटर्न। तो जहाँ पर इस प्राथमिक बिंदु पे काम किया जाए उसको नाम दिया गया रेवेन्यू सेंटर्स। नाउ हमने ये जाना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या फ़ायदे हैं, किस तरह से इसको लागू किया जाए। अब ये भी जानना ज़रूरी है कि इसको लागू करते समय कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं। दिक्कतों की बात की जाए तो सबसे पहले दिक्कत आती है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, दैट इज विच कॉस्ट इज कंट्रोलेबल एंड विच वन इज अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल आर असाइंड टू द मैनेजर्स। नेक्स्ट इज इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। हर मैनेजर अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए एक होड़ सा मचाए रहता है। ऐसे में इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते करते कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर देता है। इससे बचने की ज़रूरत है। डिले इन रिपोर्टिंग। अब एक ही चीज़ की अलग अलग जगहों से रिपोर्टिंग हो रही है। ऐसे में प्रायः यह पाया गया कि रिपोर्टिंग सिस्टम हमारा धीरे हो जाता है। धीमी रिपोर्टिंग से हमें दिक्कत ये आएगी कि जब भी हमें समयबद्ध निर्णय लेना होगा हमारे पास सारी जानकारियाँ उपलब्ध नहीं होंगी। ओवरलोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। एक ही इंफॉर्मेशन हर डिपार्टमेंट अलग अलग उद्देश्य से प्रेषित करता है। ऐसे में मैनेजमेंट के पास इंफॉर्मेशंस की ओवरलोडिंग होने की समस्या उजागर हो जाती है। कंप्लीट रिलायंस विल बी डिसेप्टिव. It is a system just to direct the attention of management to those areas of performance which required further investigation. It is a controlling tool. It is not a solution. इसके माध्यम से हम कमियों को जान सकते हैं और भविष्य में उन कमियों को दूर कर सकते हैं. अंत में यदि मैं इस पूरे प्रेजेंटेशन का सारांश आपको देना चाहूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग वो साधन है जिसके माध्यम से कोई भी संस्था अपने विभागों के कार्यों की गणना, तुलना और उनके एफिशिएंट और एफिशिएंसी को मेज़र करके
उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के मैनेजर को इनिशिएटिव प्रोवाइड करता है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जिन भी बच्चों ने हमारे इस प्रेजेंटेशन को सुना उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के संदर्भ अब कोई भी डाउट या संदेह नहीं रह गया होगा। आप सभी लोगों ने मेरे इन बातों को इतने पेशेंसली सुना, इस बात के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।